From this class, we are going to start our second chapter of standard 11th, and that is biological classification. So this chapter is very much linked to the first chapter, and especially the taxonomic categories that we had studied in our previous chapter, that was kingdom, phylum or division. Likewise, we had class, order, family, genus and species. So we studied these 7 taxonomic categories in the previous chapter, and here we are going to study why an organism belongs to a certain category. That is, what are the properties on the basis of which we are going to classify a certain organism and put it in a certain category or any certain division. So this is what we are going to study in this chapter. So first of all, let's look at the definition of the biological classification. So it says that the art of identifying distinctions. So these distinctions, or we can also say that these are the differences which distinguish an organism from a different organism or a similar organism. That is, a lion will have certain properties on the basis of which you can differentiate it from a panther or a tiger. Likewise, a dog will have certain distinction or certain distinguishing features on the basis of which you can distinguish it from a cat. Likewise, you can distinguish humans, chimpanzees and gorillas on the basis of certain distinctive categories or characters. So these are the art of identifying distinctions among organisms and placing them into groups which that reflect their most significant features and relationship. So this part says that कि एक organisms को जब हम लोग उसके distinctive feature के basis पे क्लासीफाई करते हैं और किसी एक ऐसे ग्रुप में रखते हैं जो उसके फीचर को सिग्निफाई करता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उस ग्रुप में रखेंगे जिस ग्रुप से उसके फीचर सिमिलर होते हैं, और किसी भी एक सर्टेन ग्रुप का जो ऑर्गेनिज्म होता है एक सर्टेन दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ एक सर्टेन रिलेशनशिप शो करता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डीलिंग विथ हियर. So here what are we doing is and placing them into groups that reflect their most significant features. यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमने जिस भी ग्रुप में रखा है उस ग्रुप में उसके सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स होंगे और उस ग्रुप के सभी लोगों में वो कॉमन होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्राइमेट्स की बात करें, प्राइमेट्स जो है मैमल्स का एक है कैटेगरी, तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉमन होता है. फिर होते हैं नॉन प्राइमेट्स, तो नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होता है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी नॉर्मल ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन आवर 12th क्लास, बट दिस इज वन सच फीचर. तो यहाँ पर हम मैमल्स को अगर हम एक कैटेगरी में रखते हैं तो हर मैमल्स में कॉमनली ये पाया जाता है कि उनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं. उसके अलावा उन पे उनके बॉडी पर हेयर्स भी होते हैं. देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ मैमल्स विच हैव प्लेसेंटा, जिसे हम मेटाथीरियंस कहते हैं. तो यहाँ पर जो भी ग्रुप होते हैं उस ग्रुप के एक सर्टेन स्पेसिफिक फीचर होते हैं, और उस ग्रुप के जो भी मेंबर्स हम उस ग्रुप में रखेंगे उन ग्रुप्स में उन मेंबर्स में वो सारे प्रॉपर्टीज होने चाहिए. और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ एक सर्टेन रिलेशनशिप भी शो करता है, और जो एक ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू डिफरेंट फीचर्स. So this is the definition of biological classification. Now we come to the history of classification, because first of all we have to study mainly the 5 kingdom classification, and that was given by R.H. Whittaker. But this does not start with R.H. Whittaker. जो classification है वो बहुत ही पुराना प्रोसेस है, बहुत टाइम से हम classification को करते आ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली क्लासिफिकेशन इंसान अपने अपने नीड्स के अनुसार करता था, या फिर अपने अपने जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते थे जिसे स्पीशीज में दिखता था उसके बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन होता था. तो बहुत सारे लोगों का क्लासिफिकेशन में एक सर्टेन रोल रहा है, और उन रोल्स को हम ब्रीफली देखने वाले हैं यहाँ पर कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका कि एक सर्टेन रोल रहा है क्लासिफिकेशन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज हिपोक्रेट्स. So he divided animals into insects, birds, fishes and whales. So these are the categories of animals which we are going to study in our chapter number 4, that is the animal kingdom. So इन्होंने animals को इन 4 categories में divide किया था. Could be more categories also, but these are the common most categories in terms of classification of Hippocrates. Now Hippocrates के बाद जो साइंटिस्ट ने या फिर जिस इंसान ने सबसे पहले बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, एंड दैट वाज द फादर ऑफ zoology एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, एंड हिज नेम इज
Aristotle. So Aristotle is widely regarded as the father of biology also, and he is also regarded as father of zoology. So he did certain classifications on the basis of specific features. So what about his specific features? तो इनका जो specific feature था that was morphological characters. तो morphological characters का मतलब क्या होता है? Morphological character means external characters, जो आप बाहर से देख सको. So this morphological means external. तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स का जो बाहरी फीचर होता है, फॉर एग्जांपल 2 फुटेड और 4 फुटेड, इसके अलावा प्लांट्स का हाइट क्या है, छोटा है, बड़ा है या फिर बहुत बड़ा है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था. तो हम ब्रीफली यहाँ पर देख सकते हैं कि एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था और उन्होंने कौन कौन से कैटेगरीज बनाए. तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग किया. दैट इज प्लांट्स को एक कैटेगरी बनाया उन्होंने और फिर एनिमल्स को एक कैटेगरी बनाया. इसके अलावा फिर उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया साइज के बेसिस पर कि कौन सा प्लांट बड़ा है, कौन सा मीडियम साइज है, कौन सा छोटा है. सो दिस हर्ब्स आर द स्मॉलेस्ट प्लांट्स. फिर उससे बड़े श्रब्स होते हैं और सबसे बड़े ट्रीज होते हैं. तो यहां पर इन्होंने साइज के बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरी में रखा. दीज आर द स्मॉलेस्ट, and these are largest among these 3. तो साइज के बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया. तो हर्ब सबसे छोटे छोटे प्लांट्स को कहा. फिर जो उससे थोड़े से बड़े जो झाड़ी के साइज के जो प्लांट्स होते हैं, दैट इज उनको इन्होंने श्रब्स कहा. और जो काफी बड़े हार्ड वुडी प्लांट्स होते हैं जैसे कि मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री, तो जो काफी बड़े साइज के प्लांट्स होते हैं जिनमें नॉर्मली काफी हार्ड वुड वाला स्ट्रक्चर होता है, उसे इन्होंने कहा ट्रीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स का इन्होंने इसी तरीके से क्लासिफिकेशन किया था. नाउ इनका जो क्लासिफिकेशन था एनिमल्स के बेसिस पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. तो एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया सबसे पहले रेड ब्लड या फिर नॉन रेड ब्लड के बेसिस पे. तो रेड ब्लड हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं. तो जिन ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड नहीं होंगे उनमें आरबीसीज भी नहीं होंगे, यानी कि बिना रेड ब्लड सेल्स के रेड ब्लड हो ही नहीं सकता. अगर हमारे ब्लड में आरबीसी है तो वहां पर रेड ब्लड होगा. सो सबसे पहले जो एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया है वो था एनाइमा के बेसिस पे, एनाइमा और इनाइमा. तो एनाइमा इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होते हैं, यानी कि उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते हैं. नाउ जो दूसरा कैटेगरी था वो इनाइमा, इनमें क्या था कि रेड ब्लड पाया जाता था. एंड वी नो कि रेड ब्लड क्यों होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज. रेड ब्लड सेल्स के प्रेजेंस की वजह से, आरबीसीज की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर रेड ब्लड पाया जाता है. फिर इन्होंने एनाइमा को फिर से डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में, एक हार्ड बॉडी और दूसरा सॉफ्ट बॉडी के बेसिस पर. तो हार्ड बॉडी के मेंबर्स को इन्होंने कहा इंसेक्ट, और दूसरा जो सॉफ्ट बॉडी था, सॉफ्ट बॉडी के मेंबर्स को इन्होंने 2 कैटेगरी से बांटा, जिसके पास शेल होते हैं और जिसके पास शेल नहीं होते हैं. तो जिसके पास शेल था उसका एक एग्जांपल है शेलफिश, और जिसके पास शेल नहीं होता है उसका एक एग्जांपल है जेलीफिश. तो इन्होंने सॉफ्ट बॉडी और हार्ड बॉडी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया. फिर उसके पास शेल है या फिर उसके पास शेल नहीं है, इसके बेसिस पर भी उन्होंने क्लासिफाई किया. तो आप इस पूरे कैटेगरी में ये देख सकते हैं कि जो भी कैटेगराइजेशन या जो भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर एरिस्टोटल ने किया, यहाँ पर उसने वो फीचर्स के बेसिस पे किया जो हम देख सकते हैं. अगर हमारा ब्लीडिंग होता है तो हम ब्लड की कलर को देख सकते हैं. लाइकवाइज यहाँ पर हम प्लांट के साइज को देख सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स की बात हो रही है जो कि नॉर्मली आप अपनी आंखों से देख सकते हैं. तो यहाँ पे स्मॉल, लार्ज और लार्जेस्ट साइज हम देख सकते हैं. लाइकवाइज हम ब्लड की कलर को देख सकते हैं. लाइकवाइज हम हार्ड बॉडी और सॉफ्ट बॉडी को भी देख सकते हैं.
लाइकवाइज हम इंसेक्ट्स या फिर सॉफ्ट बॉडी में जो शेल होते हैं या किसी में शेल नहीं होता है, तो इन सारी चीज़ों को यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया। सो एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच से ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया था। नाउ एरिस्टोटल ने एक लैडर ऑफ लाइफ दिया था। ही रोट अ सर्टेन बुक एंड ही रोट एक्चुअली मेनी बुक्स। तो इन्होंने अपनी बुक्स में एक लैडर ऑफ लाइफ दिया कि लोअर मोस्ट लेवल से जो हायर मोस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका क्या स्केल है, उसके बेसिस पर इन्होंने एक लंबा सा लैडर ऑफ लाइफ दिया, जिसके सबसे नीचे इन्होंने रखा था इनएनिमेट मैटर को, एंड लाइकवाइज इन्होंने उसके बाद प्लांट्स को रखा, फिर लोअर एनिमल्स को, फिर हायर एनिमल्स को रखा। सो दिस वाज हिज ladder of life. Now we are going to study his ladder of life. Now we will study the Aristotle's ladder of life. So इनका एक बुक आया था, he wrote a book called Scala Naturae, that means ladder of nature or ladder of life you can say. So यहाँ पर इन्होंने नॉन लिविंग थिंग से लेकर के, दैट इज इनएनिमेट मैटर, जिसे हम नॉर्मली नॉन लिविंग कहते हैं, तो नॉन लिविंग मैटर से लेकर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनकी कैटेगरीज को ऑब्जर्व किया था एरिस्टोटल ने, तो इन्होंने उनको एक सीक्वेंस में, एक हायरार्की में अरेंज किया, लोअर से हायर की ओर। यानी कि जितने भी इनिशियली ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम इवॉल्व्ड हैं या फिर वो लोअर ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी में आते हैं, और सबसे ऊपर इन्होंने इंसानों को रखा ऑन द स्केल ऑफ नेचर या फिर लैडर ऑफ नेचर पर। तो यहाँ पर सबसे ऊपर इन्होंने रखा है ह्यूमंस को और सबसे नीचे इन्होंने रखा है नॉन लिविंग थिंग को। तो इन्हीं के बीच में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल में सबसे नीचे नॉन लिविंग थिंग को रखा, फिर लोअर प्लांट्स को रखा। हमें पता है कि लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कि एल्गा या ब्रायोफाइट्स, तो इन्हें हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स हम जानते हैं कि हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को। तो आप लोगों ने 9th क्लास में डाइवर्सिटी पढ़ा होगा, वहां पर प्लांट के आपने 5 कैटेगरीज पढ़े होंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो इनिशियल कैटेगरीज हैं, और जो हायर प्लांट्स हैं वो अपर कैटेगरीज हैं, दैट इज द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म। तो प्लांट्स को इन्होंने एनिमल्स से कम इवॉल्व्ड माना या फिर एनिमल्स के बिलो माना है स्केल ऑफ नेचर में। तो लोअर प्लांट्स जो कि लोअर एनिमल्स जो हैं वो भी हायर प्लांट्स से ऊपर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो एनिमल्स है वो प्लांट्स से स्केल ऑफ जो नेचर है उस पर एनिमल्स ऊपर आते हैं, भले ही लोअर एनिमल्स ही क्यों ना हो, लेकिन वो हायर प्लांट से ऊपर आते हैं। सो यहाँ पर हायर प्लांट के ऊपर हमने देखा ज़ूओफाइटा। अब ज़ूओफाइटा के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्पॉन्जेस और जेलीफिशेस। हमें ये बात पता है कि 9th क्लास में जब आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी, तो पढ़ा होगा कि ये जो जेलीफिशेस होते हैं वो सीलेंट्रेटा में आते हैं, एंड जो स्पॉन्जेस हैं वो पॉरीफेरा में आते हैं, एंड दीज आर द लोअर मोस्ट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। यानी कि जब एनिमल्स की स्टार्टिंग हुई तो एनिमल्स का जो सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी है दैट इज द पॉरीफेरा एंड द सीलेंट्रेटा, उससे एग्जांपल्स की शुरुआत होती है। देन कम्स द इंटोमा, जिसमें हम नॉर्मली इंसेक्ट्स को रखते हैं। तो अभी के क्लासिफिकेशन में हम इंसेक्ट्स को रखते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्पॉन्जेस से ज्यादा एडवांस या ज्यादा ऊपर आता है इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स के बाद आता है ऑस्ट्रेकोडर्मा, दैट इज स्नेल्स। तो अभी के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्नेल्स को हम रखते हैं मोलस्का के अंदर। यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्नेल्स जो है वो इंसेक्ट से ऊपर आते हैं स्केल ऑफ नेचर में। उसके बाद आता है मेलाको स्ट्राटा। तो यहाँ पर लॉबस्टर्स और क्रैब्स आते हैं। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ मेलाकोस्ट्राका अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो इनका भी जो पोजीशन है वो स्नेल से ऊपर है। लाइकवाइज मेलाकिया, जिसमें स्क्विड्स और ऑक्टोपस आते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो ऑक्टोपस होता है वो भी मोलस्का के अंदर में ही आता है। सो मोलस्का के बाद स्टार्ट होता है फिश। तो फिशेस को अभी हम वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, और अभी के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें ये बात पता है कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो नॉन वर्टिब्रेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। फिशेस के बाद इन्होंने सेटेसी को रखा। तो फिशेस नॉर्मली वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास गिल्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मली फिशेस में गिल्स ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन जो सेटेसी है, सेटेसी इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ मैमल्स। तो सेटेसी फिशेस की तरह भले ही पानी में रहता हो,
लेकिन दीज आर नॉट फिशेस, दीज आर मैमल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा वेल्स, ब्लू वेल्स के बारे में, डॉल्फिन्स के बारे में। सो दीज आर नॉट फिशेस, दीज आर मैमल्स। तो वैसे मैमल्स जो कि पानी में रहते हैं, दैट इज दीज आर एक्वेटिक। तो इनको इन्होंने फिशेस से ऊपर माना। फिशेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैमल्स। सो इसके बाद इन्होंने ओविपेरस क्वाड्रपेड्स को रखा। ओविपेरस उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि अंडे देते हैं। और कैसे ओविपेरस? जो कि क्वाड्रपेड हो, यानी कि 4 पैर पर चलने वाले जो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि टर्टल्स। तो ये 4 पैर पे चलते हैं लेकिन ये अंडे देते हैं। अब बर्ड्स भी तो ओविपेरस होते हैं, चिड़िया लोग भी तो अंडा देती है, लेकिन इसे इन्होंने ऊपर माना क्योंकि बर्ड्स जो है वो इन जनरल फ्लाई कर सकते हैं और वो ज्यादा इवॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू ओविपेरस क्वाड्रपेड्स। तो ओविपेरस क्वाड्रपेड्स में जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये रेप्टाइल्स होते हैं। और अभी के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो रेप्टाइल से ज्यादा इवॉल्व होता है बर्ड्स, दिस इज ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट सही बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ओविपेरस क्वाड्रपेड्स वो हो गए जो 4 पैर पर चलने वाले जानवर है लेकिन अंडे देते हैं। अब बर्ड्स भी अंडे देते हैं लेकिन ये इनमें फ्लाइट कैपेबिलिटी होती है। और एक्सेप्शनल बर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया या एमू हो गया, इनमें फ्लाइट कैपेबिलिटी नहीं होती है, यानी कि ये नहीं उड़ सकते। लेकिन नॉर्मली बर्ड्स में हम ये अज्यूम करते हैं कि बर्ड्स में फ्लाइट कैपेबिलिटी होती है। नाउ उस बर्ड से ज्यादा इवॉल्व इन्होंने माना वैसे जानवर जो कि 4 पैर पे चलते हैं लेकिन विविपेरस होते हैं। यहाँ पर विविपेरस का मतलब होता है कि ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। यानी कि यहाँ पर वैसे 4 पैर पे चलने वाले जानवर जो कि अंडे देते हैं, दैट इज दीज आर एग लेइंग एनिमल्स, दीज आर बर्थ गिविंग एनिमल्स। तो यहाँ पे ये सीधा बच्चे को जन्म देते हैं और ये क्वाड्रपेड्स। तो हमें अभी के टर्म्स में ये बात पता है कि मैमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, तो इसे हम मैमल से इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि मैमल्स में जैसे कैट्स हो गए, रैट्स हो गए, काउस हो गए, बफेलोज हो गए, ये सारे मैमल्स हैं, 4 फुटेड यानी कि क्वाड्रपेड्स हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये मैमल्स की बात कर रहा है। और मैमल्स में भी हमें पता है कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल सिस्टम वाला ऑर्गेनिज्म है दैट इज हम लोग, यानी कि ह्यूमंस, या अगर बायो के टर्म्स में बात करें तो होमो सेपियंस। सो होमो सेपियंस यानी कि हमें इन्होंने सबसे ऊपर माना है स्केल ऑफ नेचर पे, यानी कि वी आर एट द टॉप ऑफ द स्केल ऑफ नेचर, वी आर एट द पिनिकल ऑफ एवोल्यूशन। तो हम एवोल्यूशन के पिनिकल पे हैं, इसीलिए इन्होंने ह्यूमंस को सबसे ऊपर रखा है बिकॉज हमारे पास सबसे एडवांस्ड ब्रेन है। तो दिस वाज द स्केल ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो अगर हम अभी के क्लासिफिकेशन सिस्टम को इस एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम से इक्वेट करें तो काफी हद तक इसमें अच्छाई भी है, दैट इज इसमें काफी हद तक करेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओविपेरस क्वाड्रपेड्स की बात करें तो दीज आर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से ज्यादा इवॉल्व होते हैं बर्ड्स, और जनरली बर्ड्स से ज्यादा एडवांस कह सकते हैं मैमल्स को। तो यहाँ पर ये चीज तो सही है, लेकिन हम प्लांट्स के सीक्वेंस को और एनिमल्स के सीक्वेंस को साथ में नहीं रख सकते क्योंकि प्लांट्स का इवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ है, एनिमल्स का इवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ है। इट इज नॉट दैट कि प्लांट्स आर लेस इवॉल्व्ड देन अस, प्लांट्स आर एक्चुअली डिफरेंटली इवॉल्व्ड देन अस। तो प्लांट्स हमसे डिफरेंट होते हैं, हमसे कम इवॉल्व्ड नहीं होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो प्लांट्स को नीचे रखा है इन्होंने एनिमल्स से, दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स तो है अलग तरीके से इवॉल्व किए हैं और हम अलग तरीके से इवॉल्व किए, यानी कि एनिमल्स इन जनरल हैव इवॉल्व्ड इन अ डिफरेंट वे एज कंपेयर टू द प्लांट्स। तो हमें इन एनिमल्स और प्लांट्स को एक सीक्वेंस में नहीं रख सकते। तो ये इनमें मिस्टेक है, लेकिन काफी हद तक सही चीजें भी हैं। जैसे कि एंटोमा के बाद इन्होंने रखा है ऑस्ट्रैकोडर्मा जिसके अंदर स्नेल्स आते हैं। तो वाकई में जो मोलस्का होता है उस आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट वाले कैटेगरी से ज्यादा इवॉल्व होता है। सो इन जनरल देयर आर सर्टेन करेक्ट थिंग्स हियर एंड देयर आर सर्टेन रॉन्ग थिंग्स आल्सो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को हम एक सीक्वेंस में नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों टोटली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट्स एनिमल्स के नीचे या फिर एनिमल्स से कम इवॉल्व होते हैं।
सो नाउ वी हैव सीन कि एरिस्टोटल का क्या कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन। सो एरिस्टोटल को हमने कहा था कि ही वॉज फादर ऑफ जूलॉजी एंड ऑल्सो ही वॉज फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन जूलॉजी तो एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं, बट बॉटनी की स्टडी के लिए जो फादर जिसे हम मानते हैं दैट इज कॉल्ड एज, हिज नेम इज थियोफ्रास्टस। सो ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बॉटनी। तो इन्होंने भी क्लासिफिकेशन के लिए काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। ही क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड 480 प्लांट्स, और इन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं किया, उनका डिस्क्रिप्शन भी किया है। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 480 प्लांट्स को क्लासिफाई किया है और डिस्क्राइब किया है। और इन्होंने एक बुक लिखा था, इट्स नेम वाज हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इस बुक में इन्होंने इन सब प्लांट्स का जिक्र किया है और इनका क्लासिफिकेशन किया है। चैप्टर 3 में हम प्लांट क्लासिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वहाँ पर कुछ प्लांट्स के जीनस और जो कैटेगरीज होते हैं वो सब फिर से आएंगे। तो वहाँ पर ये सारी प्लांट्स के केसेस की जो भी डिटेल्स है हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट अगले चैप्टर में, दैट इज प्लांट किंगडम के अंदर। अब इन्होंने प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्लांट्स को 4 कैटेगरी में बांटा। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा कैटेगरी बनाया, दैट इज द अंडर श्रब्स। तो हर्ब्स एरिस्टोटल ने भी बताया था, श्रब्स और ट्रीज एरिस्टोटल ने भी बताया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक अलग सा कैटेगरी बनाया जो श्रब्स के नीचे, यानी कि जो छोटे छोटे झाड़ी जैसे प्लांट्स होते हैं उन्हें इन्होंने कहा अंडर श्रब्स। तो ये एक एक्स्ट्रा कैटेगरी लाया। तो अगर हम थियोफ्रास्टस की बात करें तो इन्होंने प्लांट्स को 4 कैटेगरी में बांटा, और एरिस्टोटल की बात करें तो उन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा। नाउ थियोफ्रास्टस के अलावा जॉन रे का भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। सो ही डिस्क्राइब्ड अबाउट 18,600 प्लांट्स। तो इनका जो कलेक्शन था काफी बड़े साइज का था, और इन्होंने यूरोप में काम किया था। तो इन्होंने 18,600 जो प्लांट्स कलेक्ट किया था वो ऑल ओवर यूरोप से था, यूरोप के किसी एक कंट्री से नहीं था। तो इन्होंने भी एक बुक लिखा, इट्स नेम वाज हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। सो इन्होंने लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम और इन्होंने लिखा हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। दीज बुक्स आर वेरी सिमिलर। यहाँ पर बस एक जनरलिस वर्ड आ गया, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम। तो यहाँ पर जॉन रे ने 18,600 प्लांट्स पर काम किया, उसके बारे में डिस्क्राइब किया। नाउ इन्होंने 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को फॉर्म किया था, एंड दैट इज मोनोकोटिलेडॉन एंड डाइकोटिलेडॉन। एंजियोस्पर्म्स में ये सारी कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स आपने जरूर पढ़े होंगे 9th क्लास में। मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनके सीड में एक कॉटिलेडॉन होता है, जैसे कि राइस, वीट, यहाँ पर इनके जो सीड्स होंगे उनमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन पाया जाता है। और डाइकॉट में 2 कॉटिलेडॉन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्राम, चना में इजीली आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। तो जो 2 पार्ट में चना इजीली स्प्लिट हो जाता है, दोज आर द 2 कॉटिलेडॉन्स। तो इन्होंने इन दोनों वर्ड्स को कॉइन किया था। दिस वाज हिज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में बताया था। तो ये वाज पहला, ही वाज द फर्स्ट इंसान जो कि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में बात किया। यानी कि इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो होता है स्पीशीज। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन जनरल बात करें तो वहां पर हम उसके यूनिट को, अगर उसके पॉपुलेशन के यूनिट को क्लासिफाई करें तो जो सबसे बेसिक यूनिट होगा वो होगा स्पीशीज। यानी कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एज बेसिक पॉपुलेशन यूनिट। तो इनके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनके बारे में हमें एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, एंड हिज नेम इज अर्नस्ट मेयर। सो बहुत सारे बच्चे इनके कंट्रीब्यूशन और जॉन रे की कंट्रीब्यूशन में कंफ्यूज कर जाते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर, दोनों को मैंने साइड बाय साइड लिखा है ताकि आपको इस दोनों के कंपैरिजन, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज तो दिया, लेकिन किस टर्म्स में? बेसिक पॉपुलेशन यूनिट के टर्म्स में। यानी कि इनका मानना था कि जो स्पीशीज होते हैं वो पॉपुलेशन के बेसिक यूनिट होते हैं। नाउ अर्नस्ट मेयर ने बोला, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंटली जो काम किया है वो काम किया है
कि स्पीशीज का जो डेफिनेशन है, जो करेंटली हम लोग स्पीशीज का डेफिनेशन मानते हैं, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। सो सबसे ज्यादा इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के लिए किया है। अब इनके अकॉर्डिंग स्पीशीज क्या होता है वो हमें जानना है। तो इनका मानना था दैट स्पीशीज आर नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि जो स्पीशीज होते हैं वो बाहर से दिखने में ही सिर्फ सिमिलर नहीं होते हैं, उनके में एक स्पेशल एबिलिटी होता है, यानी कि वो आपस में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट इज द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन ओनली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, नॉट विद एनी अदर स्पीशीज। और इन्होंने माना कि जो बाकी अदर ऑर्गेनिज्म है उन्हें ये एक्सक्लूड कर देते हैं रिप्रोडक्शन से, यानी कि कोई भी स्पीशीज बाकी ऑर्गेनिज्म को अपने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से एक्सक्लूड कर देता है और सिर्फ अपने स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लायन जो होगा वो अपने स्पीशीज के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगा। सेम तरीके से हम टाइगर के लिए भी बात कर सकते हैं, हॉर्स के लिए भी बात कर सकते हैं, डोंकी के लिए भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीशीज में रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ होता है। सो ये वाला जो पार्ट है इन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया और इनका मानना था कि एक स्पीशीज के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और साथ ही साथ वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, यानी कि एक मेंबर, किसी भी स्पीशीज का जो मेंबर्स होता है वो काफी सिमिलर दिखते हैं, तो माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो ह्यूमंस को देखो, एक अफ्रीकन और एक अमेरिकन, लेकिन दोनों के अपीयरेंस में तो चेंजेस होंगे, लेकिन काफी ज्यादा उनका जो बॉडी है, उनका जो जीन्स है वो सेम होता है, यानी कि वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड अफ्रीकन और अमेरिकन मेल एंड फीमेल कैन इजीली रिप्रोड्यूस विदाउट एनी इशू और जेनेटिक प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हमें जो मेन पॉइंट पे स्ट्रेस करना है, जो मेन पॉइंट पे फोकस करना है इन द केस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्नस्ट मेयर, वो ये है कि इस स्पीशीज के अंदर आपस में इंटरब्रीड हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीशीज कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन रे और इनका स्पीशीज कॉन्सेप्ट। So now we have seen a small history of the classification of organisms, and now we are going to straight come into the real classification of organisms, जो कि Linnaeus से start होता है। That is, उन्होंने दो किंगडम का क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। Linnaeus ने एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्लासिफाई किया था, एंड लाइकवाइज दो किंगडम के बाद तीन किंगडम, and then we had 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom classification system. So now we are going to study all those kingdom classification system which we have to study according to our NCERT.